वाटरवेज लेजर टूरिज्म आईपीओ की डिटेल स्क्रीन पर आएंगी। आज से खुला है, 25 जून यानी कि थर्सडे तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। 769 से 808 का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 585 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, इंटायरली फ्रेश इशुएंस। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। चेयरमैन साहब और सीएफओ साहब दोनों आपकी स्क्रीन पे आपको रेडी नजर आएंगे। जर्गन, आई विल स्टार्ट विद यू। एक तो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू ऑन डेब्यूटिंग इन द प्राइमरी मार्केट्स। Thank you. You are the chairman and CEO, and I was reading about you, a seasoned global cruise industry veteran who's here to, for the company's vision and operations to steer that. But then who owns Cordilla Cruises? Who owns this holding company, Waterways Leisure Tourism? We have a promoter. Huh? His name is Mr. Hotwani. I know him for so many years, and he was investing in our company. Our company as in Cordilla Cruises, Cordilla Waterways. company, yes, and Waterways. He was investing in this company and he brought you to India to steer this company. No, I was in India, and I asked him to invest in our company, and he became the promoter. So you were associated with all this business earlier. You were associated with the cruise industry earlier also? Yeah, I'm in the cruise business since 40 years. But I know Mr. Hotwani since, I think, 2015. We met in New York. And we were always exchanging ideas and so forth. And then when I came to India, and we had a great opportunity during COVID, we needed to buy a ship. And he was right there as a friend. He was very interested, and he invested. So as on date, Cordilla Cruises operates a single vessel, MV Empress. And this company holds a dominant 79% market share of the domestic crude industry. Really, it's a little bit wrong. First of all, we own 3 ships. As on date, operational is only one. The next one is coming in 3 months, and the next one a year later, because ships are sold, cruises are sold 24 months in advance. So the business for 3 ships is already open since last year. So as on date, you have one vessel that's operational. You've already procured 2 more, and that will be commissioned in the days to come, months to come. Yes, 3 months the next one, and a year later the next one, but they're already for sale. So people are already purchasing all these cruises forward because people buy vacations. Or sale as in the tickets are on sale for these cruises. Yeah. The people buy cruises 10 months, 11 months, 18 months in advance, corporates, weddings. They don't say, oh, tomorrow I'm going to cruise. They book long time in advance, right? So that's already there. And the Empress is being here since 5 years, 6th year now, doing extremely well. And we have not looked back since. I mean, we have sailed all the way from Mumbai to the moon and back with 8 lakh passengers, happy Indian passengers. I have been one of them. Great. अच्छा, निशिकांत सर, थोड़ा आप डिटेल में समझेंगे, हिंदी में समझेंगे तो व्यूअर्स ज्यादा कनेक्ट कर। हाँ जी। बात हो रही थी एक वेसल ऑपरेशनल है। आप लोग 2 वेसल्स और एक्वायर कर रहे हो। एक नॉर्वेजियन स्काई 2004 पैसेंजर कैपेसिटी की जो FY27 के लिए कमीशन हो रही है, और नॉर्वेजियन सन 1936 गेस्ट FY28 में कमीशन होगी। ये बे क्रूज शिपिंग एंड लीजिंग से एक्वायर करी जा रही है। और वो RHP कहता है वो आप ही की स्टेप डाउन सब्सिडरी। हाँ जी। ये इक्वेशन कैसी? आप ही की सब्सिडरी एक्वायर करेगी शिप्स और ये कंपनी उससे लीज कर रही होगी, कैसे चलेगा इसका गणित? वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट तो जस्ट वो जर्गन ने जहाँ बोला था वहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा कि हमारा जो तीनों वेसल हैं उनकी सेलिंग हमारी वेबसाइट पे 2025 से स्टार्ट है, तीनों की। तो इतने एडवांस बुकिंग? हाँ। फॉरेन में तो लोग एक साल शिप पे रहते हैं। वहाँ तो कंसेप्ट ही डिफरेंट है। वहाँ की एवरेज सेलिंग इज 10 डेज, हमारी जो है एवरेज 3.5 दिन की है। तो फॉरेन में पीपल स्टे एट शिप ओनली बिकॉज उसमें क्या रहता है कि वो टैक्स फ्री हो गया। जैसे ओल्ड एज होम होते हैं वैसे हो गया, सब कुछ रहना शिप पे, खाना पीना सब, क्योंकि शिप एज एन हॉस्पिटल ऑल्सो सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो एक तरीके से ओल्ड एज होम में वहीं रहना और आप टैक्स फ्री हो जाते हो बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट इन दी इंटरनेशनल वाटर, यू ट्रेवल फ्रॉम द कंपनीज आर ऑल्सो टैक्स फ्री बिकॉज उनका, हम जब बात करेंगे तो आपको समझाऊंगा कि उनका जो मॉडल और हमारा मॉडल है। अगर हम मॉडल की बात करते हैं, बिजनेस मॉडल की, हम भी इंटरनेशनल क्रूजर हैं, हम भी इंटरनेशनल क्रूज एक्सपीरियंस देते हैं, बट हम डोमेस्टिक क्रूजिंग करते हैं। वर्ल्ड में हम ही एक कंपनी जो डोमेस्टिक क्रूजिंग करती है। डोमेस्टिक क्रूजिंग मतलब हम मुंबई हाई सीज जाते हैं, मुंबई से गोवा जाते हैं, मुंबई से कोच्चि जाते हैं, ये हम जब भी मुंबई का कोई भी इंडिया का पोर्ट छोड़ते हैं तो नेक्स्ट पोर्ट हम इंडिया का टच करते हैं। और जैसे ही आप ये टच करते हो, आप एक इंडिया में स्थायी आपको स्थान बना, परमानेंट स्टेब्लिशमेंट बना देते हो इनकम टैक्स के तहत, एंड यू हैव टू अडेयर टू द इनकम टैक्स लॉज। एक बार आप हाई सीज में चले गए, इंटरनेशनल वाटर में चले गए, तो ये सब रूल्स नहीं, लेकिन इंटरनेशनल वाटर में जाके आपको दूसरी कंट्री का पोर्ट अगर आप टच करोगे तो
अगर वापस आप इंडिया के पोर्ट में ही आ गए, बॉम्बे से निकल के बॉम्बे आ गए, बॉम्बे से निकल के गोवा चले गए, तो आपने इमीडिएट अगर आपको उसमें जाना है इंटरनेशनल में, तो या तो मुंबई से आप श्रीलंका जाओ और फिर आओ। पर कोडला बीच में करती थी, वो करते हैं हम लोग। तो हम लेकिन क्या इंडियन कंपनी है, इंडियन पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, तो वो जीएसटी प्रावधान में सब में हम इंटरनेशनल जाते हैं तो हम कन्वर्ट करते हैं उस वक्त जब हम श्रीलंका जाते हैं। ये बात छिड़ी इसीलिए आप कह रहे हो कि विदेश में तो कई लोग साल साल भर उसी जहाज में रहते हैं ताकि टैक्स वैक्स ना लगे, इंटरनेशनल वाटर्स में किसी की कुछ हिंदुस्तान में भी ये कंसेप्ट के लिए माल बिकने लगा है, कैसा हो रहा है क्या? नहीं हो सकता है, बिकॉज इंडिया में जीएसटी प्रावधान क्या बोलता है कि व्हेन वी आर एन इंडियन एंटिटी, हम एक इंडियन कंपनी है, रिसिपिएंट भी इंडियन है, तो आप भारतीय को प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका जीएसटी आ जाएगा। अगर ये मॉडल नहीं चल सकता है, वो बाहर वाले आ भी नहीं सकते, ये उनके लिए एक रोड बैरियर भी है। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये बे क्रूज वाला? अब बे क्रूज वाला हमारे पास में क्या है, आज की डेट में हमारे पास एक वेसल हम ओन करते हैं, वो हमारी 100% सब्सिडरी है, जो कि बीवीआई में, जो एम्प्रेस उसमें ओन करते हैं हम लोग, जो हमने कोविड में सिमिलर स्ट्रक्चर में लिया था, थर्ड पार्टी से लीज पे लिया था, 30 मंथ्स की लीज थी, 30 महीना पूरा होने के बाद हमने लगा अच्छा बिजनेस अच्छा है, अंडरस्टैंड हमने खरीद लिया। अब ये जहाज जो है वो आपका है, फर्स्ट वेसल इज आवर्स, बट इट इज इन माय बीवीआई एंटिटी। वाई बीवीआई एंटिटी? इंडिया एंटिटी क्या है आपकी? एक हमारी सब्सिडरी है बे क्रूज, जो हमारी एक सब्सिडरी है बीवीआई में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। और शिप्स में कैसा रहता है स्ट्रक्चर की, देयर इज यहाँ इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स हैं, मापदंड हैं शिप्स के, वो अभी क्रूज के हिसाब से नहीं है, वो कार्गो के हिसाब से है। अच्छा। तो इंडिया में फ्लैग जो व्हाइट फ्लैग लगता है वो नहीं है, जैसे हमारे सारे जो वेसल्स हैं आज की डेट में बहामास फ्लैग के वेसल्स हैं। मेक सेंस? अब आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि भाई हमने ये जो 2 वेसल लिए हैं, हमने ये 2 वेसल एक्चुअली बे क्रूज, यही कम्युनिकेशन में है, बे क्रूज बीवीआई ने ये वेसल लिए हैं एनसीएल नॉर्वेगन क्रूज लाइनर से ऑन अ बेयरबोट चार्टर। उसने उनसे लिए हैं $16 मिलियन। बेयरबोट मतलब एक हम तो वेट लीज, ड्राई लीज। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो उसमें वो शिप दे रहा है और वो शिप बिना उसके ड्राई लीज दे रहा है, और वो बे क्रूज वो शिप हमको दे रही है वाटरवेज को विथ क्रू विथ इंश्योरेंस। बिकॉज क्या है, इंडिया में एक आरबीआई का ये भी प्रॉब्लम है, देयर इज अ सर्कुलर ऑफ आरबीआई विच डजंट अलाउ द लेसी टू मेक द पेमेंट फॉर रेमिटेंस, फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑल, एंड दे आल्सो डोंट अलाउ टू सीक इंश्योरेंस। दूसरा, जो क्रू की जो कंपनीज होती हैं वो प्रीफर करते हैं कि हम ओनर के साथ ही इंश्योरेंस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहे एम्प्लॉइज़ का सारा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एनसीएल ने बेयरबोट दिया है और गिफ्ट सिटी ने हमको टाइम चार्टर दिया है। अब ये जब हमने ट्रांजेक्शन किया था, जब आप विदेश में किसी भी कंपनी के साथ में जब आप लीजिंग या फॉरेन की कोई भी सर्विसेज इंडिया में लेते हो, उसमें एक आपको विथहोल्डिंग टैक्स का इम्प्लीकेशन आता है और एक जीएसटी का इम्प्लीकेशन आता है। हमारे केस में जीएसटी हम भरते हैं तो हमारे लिए पास थ्रू है। फॉरेन का कोई भी व्यक्ति जब इंडिया में कोई भी सर्विसेज देता है, उसका बहुत क्लियर रहता है, भाई साहब मुझे नेट चाहिए, विथहोल्डिंग टैक्स है वो तुम्हारे सर पे है। मेरे लिए वो इम्पैक्ट ये था कि अगर 16 मिलियन में लीज रेंटल करीब 160, अगर 100 की रेट पकड़ते हैं, 160 करोड़ पर अगर पे करता हूँ, और उस पर मेरा अगर 50% मतलब 80 करोड़ का मेरा विथहोल्डिंग टैक्स का इम्पैक्ट आता था। वो एनसीएल मानने को तैयार नहीं था। उसको एडवाइस किया कि तुम गिफ्ट सिटी में कंपनी खोल के कर दो, तो वो उनका वो इशू है कि वो टैक्स फ्री हेवन में है, इंडिया में करेंगे फिर उनके लिए वो वापस स्ट्रक्चर में इशू आएगा, लिस्टेड एंटिटी है उन्होंने। तो हमने गिफ्ट सिटी में जो इंडिया में प्रावधान है उसके तहत हमने एक सब्सिडरी बनाई। आज वाटरवेज जब गिफ्ट सिटी को पैसा देता है तो उसमें 0 विथहोल्डिंग टैक्स है 10 ईयर्स तक। इस मामले के लिए ऐसा रूट करा, आसान शब्दों में अपन ये समझ लेते हैं, तो अपना कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले जाएंगे, आगे बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब आप आओ, ये जो 2 जहाज ले रहे हैं उसके लिए 1524 करोड़ के टोटल लीज रेंटल्स आपको पे कर बराबर। इस आईपीओ की प्रोसीड से आप लोग उसका 480 करोड़ पे दे रहे हो। ये बाकी अब मैं समझाता हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं पूरी लाइफ 10 साल का है। 10 साल का है। देखिए क्या होता है, मैं अपफ्रंट अगर ये वेसल परचेस करता तो अगर मान लीजिए $160 मिलियन में एक साथ पे करता, करीब 1600 करोड़। अब मैंने इसको लीज में स्ट्रक्चर किया। ये बेसिकली जैसे कि फ्लाइट ऑपरेशन होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं ना, तो मैं 10 लीज एंड बाय बैक वाला मामला। 10 साल में उसका लीज रेंटल पे करूंगा, 10वें साल $1 दूंगा, वेसल मेरा बन जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू में ये करीब 85-90। अच्छा, आप तो सीएफओ साहब हो। हाँ जी। 1500 करोड़ रुपए में 2 जहाज का हम लीज रेंटल, 1500 करोड़ एक जहाज का। एक जहाज का? हाँ जी। कितना कमाओगे सर? वही आ रहा हूँ, शिप के अंदर में कितना भी महंगे से महंगा आप शिप ले लीजिए, 3.5 साल में उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाती है, चाहे नया लो, चाहे जिस अरेंजमेंट में हमने लिया है। और हमारे केस में तो हमने जो एम्प्रेस लिया था उसकी प्राइस तो हमने कोविड में लिया था, बहुत सस्ते में ली थी, तो हमारे लिए तो 1 साल में पैसा आ गया था उसका वापस। मैं बिजनेस की बात करता हूँ। तो ये $16 मिलियन हम 10 साल पे करेंगे और 10वें साल $1 देंगे, वेसल हमारा हो जाएगा। अब मैं आता हूँ आईपीओ के ऊपर। आईपीओ का जब हमने एनसीएल के साथ में अप्रैल 25 में जब डील साइन करी थी,
हमारी उसकी कंडीशन ये थी, ये ग्लोबल नॉर्म है कि जब आप वेसल लेते हो, क्योंकि जर्गन ने बोला कि साल भर पहले 1.5 साल पहले शिप बुक होते हैं, तो अगला आदमी आप बोलोगे ठीक है मैंने आपसे वेसल ले लिया, बोलेगा भाई तुम 1.5 साल में अगर पैसा नहीं दिया, कुछ कमिटमेंट नहीं हुआ और हाथ खड़े कर दिए, मैंने बुकिंग बंद कर दी तो मैं बुकिंग ना हो जाऊंगा, तो उस कमिटमेंट के लिए आपको 1 ईयर लीज रेंटल एडवांस देना होता है। ये वही पार्ट है तो जो आप ये अभी 16 करोड़ हमको, तो हमने जब चालू किया था तब हमको 32 करोड़ देना था। आज हम बैठे हैं 22 करोड़ में इंटरनल अक्रूवल से दे चुका हूं, क्योंकि मैं हर साल नेगेटिव कैश फ्लो के वर्किंग कैपिटल में रहता हूं, 100-150 करोड़ का मेरे पास कैश रहता है। ठीक है। तो आज हम जब बात कर रहे हैं तो 220 करोड़ में पे कर चुका हूं। अब जो आईपीओ की साइज है, क्विकली रैप करते हैं, 480 का मेरा आईपीओ का साइज है, उसमें से 100 करोड़ में सन का सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा और 380 करोड़ मेरा लीज रेंटल जाएगा करीब 2 साल तक इन शिप का, और 100 करोड़ मेरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रहेगा। Jurgen, your current capacity is 796 passengers for this vessel that you have, है ना? That is operating at 80 to 90% capacity utilization levels. Now with these 2 new vessels, you will be adding 4 to 5 times of your current capacity. You confident that the demand is that strong in India that they can easily absorb all this additional capacity? 250% we have increased the capacity with the 2 new ships. Most importantly, 1,000% increased the cabin qualities in terms of more suites and balconies, which all Indians love. So that's very important. But yes, the demand is there. The reason why we have not brought the ships earlier was because we're working closely with the Cruise Bharat mission and to build the infrastructure. So the last 5 years we built all the itineraries, we built all the ports, and now it's time to bring one ship at a time. The demand is here. We have 200 million very happy Indians which are eager to go cruising, and I'm super excited. The demand is there for sure. देखना पड़ेगा मिडिल क्लास मेन स्ट्रीम ट्रैवलर मैं क्विकली हाँ सर, फाइनेंशियल स्क्रीन पे चल रहे थे बार्स, ऑक्यूपेंसी FY27 में गिरी, उसका खामियाजा आय पे पड़ा, लेकिन उसका खामियाजा मार्जिन पे बहुत तगड़ा पड़ा, मतलब इरोड हो गया लिटरली। क्यों? देखिए अभी हम लोग मार्जिन पे जाते हैं तो मैं बोलूँगा आप इबिटा नंबर्स को रेफर मत करिए, बिकॉज इबिटा में मेरा जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ओनिंग और लीजिंग का, अगर आप इबिटा स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो मेरा कुछ खर्चा 87 odd करोड़ का खर्चा जो मैं लीजिंग में पे करता था वो अभी मेरा नीचे आ रहा है। हम जाएंगे अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड एक्सेप्शनल आइटम्स, मेरा लास्ट ईयर 114 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार मेरा 78 करोड़ का प्रॉफिट है। ये 78 करोड़ का प्रॉफिट जो मेरा है वो मैंने 50 करोड़ एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं, मैंने 2 वेसल नए खरीद लिए, उनकी बुकिंग मैंने चालू कर दी है, वो अभी एम्प्रेस नहीं एब्जॉर्ब किया है सारा खर्चा। अगर वो मैं ऐड कर देता हूं तो आई एम मेकिंग बेटर प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। Yeah, Jurgen, many are complaining you haven't left much on the table for us. If I compare with global peers of yours, if I compare with listed hotel companies, you haven't left much on the table. Is that true? I don't agree with that. I think we are really, really great future. There's a really good future to come. And unfortunately, what I know, I cannot share with you right now, but I think the future looks very bright for everyone. Yeah. And I think the right room will know what to do with it. Perfect. ये फ्यूचर की चर्चा करेंगे जब ये लिस्ट होने आएगा सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद इस आईपीओ के। जर्गन जी, निशिकांत जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। जय माता दी। जय माता जी भाई साहब। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक